Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our sixth session for English speaking, writing and reading skills. In this session, we will discuss present continuous tense. In the previous session, we discussed simple present tense. We did good number of questions and exercises on simple present tense. So let's begin this session. So first of all, let's read some sentences over here. Tia is playing golf. Dicky Duck is dancing. Tom is baking cookies. Ronit and Gia are talking to each other. Rambo and Mike are fighting. We are playing video games. So all these sentences are in present continuous tense. वापस रिवाइज करते हैं. टिया इज प्लेइंग गोल्फ. टिया गोल्फ खेल रही है. इस वक्त टिया गोल्फ खेल रही है. डिक्की डक इज डांसिंग. डिक्की डक डांस कर रही है या वी कैन से नाच रही है. टॉम कुकीज बना रहा है. रोनित एंड जिया एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. रैम्बो और माइक एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. वी आर प्लेइंग वीडियो गेम्स. हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Let's learn the formula for the same. See this: subject plus first form of the verb with ing plus object. Okay, very simple. We just read out the sentences over here. I am working. Okay, these are here I am working and it is I'm working. Long form, short form. We are working, we are working. You are working, you are working. He is working, he's working. She is working, she's working. It is working, it's working. They are working, they are working. Negatives: I am not working, I'm not working. We are not working, we aren't working. You are not working, you aren't working. He is not working, he isn't working. She is not working, she isn't working. It is not working, it isn't working. They are not working, they aren't working. Okay, read out all the sentences at least 3 times. Okay, just pause the session and read out all the sentences. Question form: am I working? And its answer is yes, you are. Are we working? No, we aren't. Are you working? Yes, I am. Is he working? Yes, he is. Is she working? Yes, she is. Or no, she isn't. Are they working? No, they aren't. Okay. So read out all the sentences. प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे वर्क एज अ वर्ब यूज़ किया है. आप कोई दूसरा वर्ब यूज़ कर सकते हैं. मे बी टीचिंग, सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, वट एवर, राइट, गोइंग, कुछ भी और वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और इन सारे सेंटेंसेस को अलग अलग वर्ब के साथ में बोलिए. ओके, सपोज मैं मे बी टीचिंग, आई यूज़ टीचिंग. ओके, सो आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग, इट इज़ टीचिंग, दे आर टीचिंग. ओके, then I'm not teaching, we are not teaching, you are not teaching, he is not teaching, she is not teaching. It is not very good sentence. He is not teaching, she is not teaching, they are not teaching. Okay, so this way you can use some other verbs also and can make many sentences. And also practice with short forms. I'm teaching, we are teaching, you're teaching, he's teaching, she's teaching, they're teaching. I'm not working, we aren't working, you aren't teaching, I'm sorry. He isn't teaching, she isn't teaching, they aren't teaching, something like that. Okay? अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कहाँ पे करते हैं. ठीक है. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं जब कोई काम इस वक्त हो रहा है. When somebody is doing something at this moment. Okay? इस वक्त आप कुछ कर रहे हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं. I'm speaking, you are listening to me, you are watching this video.
समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तान्या इज हैविंग अ बाथ, तान्या इस वक्त नहा रही है। बॉबी एंड टीना आर सिटिंग ऑन द बेंच एंड ईटिंग फूड, बॉबी और टीना बेंच पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। ओके, सो इस वक्त तानिया क्या कर रही है, नहा रही है। बॉबी और टीना क्या कर रहे हैं, बेंच पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। तो when somebody is doing something at this moment, okay, similarly when something is happening at this moment, इस वक्त सपोज बारिश हो रही है, it's raining, okay, so अगर हम अब बात करते हैं कि अभी बारिश हो रही है, that means it's raining, okay। लिसन द बर्ड्स आर सिंगिंग, ध्यान से सुनो, ये चिड़ियाएं हैं वो गाना गा रही है। ओके, सो इट्स हैपनिंग एट दिस मोमेंट। ओके, इसके सिवाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बट नॉट एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, मे बी दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, माई सिस्टर इज ट्रैवलिंग इन इंडिया। सपोज यू आर देयर इन मे बी लंडन, राइट, एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी, और आप उसको बता रहे हैं कि मेरी सिस्टर, जो मेरी बहन है, वो अभी इंडिया में ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी इसी वक्त इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो हवाई जहाज में बैठी हैं या कार में बैठी हैं या ट्रेन में बैठी हैं। अल्टीमेटली फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, मे बी वीक और मंथ, शी इज इन इंडिया। ओके, सो शी इज ट्रैवलिंग इन इंडिया। ओके, सिमिलरली आई एम लर्निंग इंग्लिश एट स्कूल, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। स्कूल में हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं या स्कूल में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस वक्त इंग्लिश सीख रहा हूँ। एट दिस मोमेंट it is true, it may not, it may be true, it may not be true, okay, but these days, okay, these days I'm learning English at school, okay। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो उस पल के लिए सच नहीं है लेकिन फिर भी सच हैं, ओके। नेक्स्ट इज we use the present continuous to talk about the future when there is a fixed agreed plan। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपने सोच रखा है कि इस संडे और मे बी नेक्स्ट संडे आप पिकनिक पे जा रहे हैं, या सैटरडे को आप मूवी देखने जा रहे हैं, या फ्राइडे को किसी मूवी का प्रीमियर शो देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, मे बी कोई पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी। तो क्या होता है कि ये पहले से आपका डिसाइडेड है। ओके, पहले से आपने सोच के रखा है कि इस फ्राइडे को, सैटरडे को, या संडे को, या इस मंथ एंड में आप ये करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो भैया, सानियाज बर्थडे इज ऑन 1 जुलाई, सानिया का बर्थडे है 1 जुलाई को। शी इज हैविंग अ बिग पार्टी ऑन हर बर्थडे, तो उसने पहले से प्लान करके रखा है कि वो एक पार्टी दे रही है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा लिखे शी विल गिव अ बिग पार्टी ऑन हर बर्थडे, कि वो अपने बर्थडे पर एक पार्टी देगी। इसकी जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि शी इज गिविंग बिग पार्टी ऑन हर बर्थडे, कि वो अपने बर्थडे पर एक पार्टी दे रही है। ओके, और आई कैन से अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, आई एम गोइंग टू मे बी कैलकाटा दिस सैटरडे, my sister is coming from US, we are going for a fashion show, okay। See one more example, Ravi and Kavi are good players, they are playing soccer next Saturday, okay। So पहले से decided है कि next Saturday को they'll be playing soccer, okay। See this, our chairman wants to meet me, I'm meeting him at 9 o'clock, okay। एक पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है या एग्री किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग 9 बजे मिलेंगे। दैट मीन्स आई एम मीटिंग माई चेयरमैन एट 9 o'clock, ओके। सो प्री डिसाइडेड अपॉइंटमेंट हो और एग्रीड प्लान हो, फिक्स्ड प्लान हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। वॉट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, आप अगले वीकेंड में आप क्या कर रहे हैं, ओके। सो दैट मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट देयर प्लान, ओके।
But we cannot use the present continuous when there is no fixed program and when we talk about things which we cannot control. Okay? Suppose I can't say it is raining next week. Okay, हम ऐसा नहीं कह सकते because बारिश पे आपका या मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. So we cannot say it's raining next week. ओके आप अपने प्रोग्राम पे कंट्रोल कर सकते हैं. आप अगर कोई प्रोग्राम रख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो दैट कैन बी कंट्रोल्ड, बट ओवर रेन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. ओके, सो यू कैन नॉट से नेक्स्ट वीक इट्स रेनिंग. ओके फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा था और अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया है. अभी हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं. एक्चुअल में क्या डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. Okay, so we use the present simple to talk about the things which happen always, often, generally, usually, normally, every week, something like that. ठीक है, हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया था लास्ट सेशन में. हम प्रेजेंट सिंपल कब यूज़ करते हैं? जब रिपीटेड एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फैक्ट हो, डेली रूटीन हो, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या उन घटनाओं के बारे में बात करें जो इस वक्त हो रही हैं. ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई ऑफन प्ले चेस. मैं बहुत बार चेस खेलता हूँ. ओके, सो दैट्स लाइक you can say it's a habit of yours or repeated action or something like that. ठीक है, और I am playing chess that means इस वक्त आप चेस खेल रहे हैं. ओके, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा. मैं बहुत बार चेस खेलता हूँ और मैं अभी चेस खेल रहा हूँ. ओके, ये दोनों में डिफरेंस है. आप हिंदी में इस तरह से डिफरेंस को समझ सकते हैं. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू मार्केट एवरी संडे. ओके, मैं हर संडे मार्केट जाती हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट. ओके, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मैं हर संडे मार्केट जाती हूँ और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ. और वी कैन से शी टीचेस fifth class students. Okay, she teaches fifth class students. She is teaching in class. Okay, तो कहने का मतलब हुआ वो 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं और दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ वो अभी क्लास में पढ़ा रही हैं. ओके, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, now we use the present simple to talk about things which are unchanging for a long time. They are permanent, and we use the present continuous to talk about things which may change. They are temporary. Or we take an example over here. I work for a private company. In summers, I am doing a government project. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो जो ये बंदा बात कर रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, राइट? सो दैट्स ट्रू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, बट समर के कुछ टाइम पे, गर्मियों में कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ये कोई भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने वाला है. ओके, सो एंड दैट्स एक्चुअली फिक्स्ड. सो प्री फिक्स्ड प्लान इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, एंड आई वर्क फॉर अ प्राइवेट कंपनी, दैट्स इन सिंपल प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टाइम ट्रुथ. ओके, खासे लंबे समय के लिए ये चीज सच है, दैट्स व्हाई इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड दिस इज अ प्री फिक्स्ड प्लान फॉर समर, so it's in present continuous. Okay, similarly we can put up more example. Say my mom cooks very tasty food. My mom cooks very tasty food. This Sunday she is making biryani for us. Okay, so इसमें क्या है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और इस संडे पहले से प्लान है कि शी इज़ गोइंग टू कुक बिरयानी. ओके, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम. सपोज राधा सिंग्स वेरी वेल. राधा बहुत अच्छा गाती है एंड शी इज़ सिंगिंग इन अ कॉन्सर्ट दिस वीक. ओके, किसी कॉन्सर्ट में वो इस हफ्ते गाना गाने वाली है. सो वो जो गाना गाने वाली है किसी भी कॉन्सर्ट में, दैट इज़ अ प्रीफिक्स्ड, और वो बहुत अच्छा गाना गाती है, दैट्स अ लाइक अ लॉन्ग टाइम ट्रुथ. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग मी. आपको समझ आ रहा होगा. यू कैन ऑल्सो फ्रेम सम ऑफ द सेंटेंसेज ऑन योर ओन. नेक्स्ट,
We use the present simple to talk about the future when there is a fixed timetable. We often use it to talk about travel times, film times, school times, something like that. Okay, so for an example, the train leaves in 10 minutes from now. Now, ये जो ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका हमेशा यही शेड्यूल रहता है। ओके, ये सपोज ये बंदा जो बात कर रहा है ये मे बी 9 बजे बात कर रहा है या 8 बजे बात कर रहा है और 8 बजकर 10 मिनट पर लगभग ये ट्रेन हमेशा शुरू होती रवाना होती है। ओके, सो द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। ओके, द फिल्म स्टार्ट्स एट 9 o'clock टुमारो। डज द फ्लाइट लीव एट 7:30 ऑन फ्राइडे? हर फ्राइडे को 7:30 बजे ये फ्लाइट निकलती है क्या? ऐसा ऐसा कुछ। ओके, द शो डजंट फिनिश अंटिल 5 p.m. टुमारो। Similarly, okay, we don't use the present simple if we have made a personal or temporary arrangement. Okay, for example, I'm meeting my friend Kavish at 10 o'clock. Okay, now this is a temporary thing. आप हमेशा कविश को मिल रहे हैं 10 बजे, ऐसा नहीं होगा। ओके, आज पर्टिकुलरली हम आज की या इस पल की हम बात कर रहे हैं कि आज का 10 बजे आपका कविश से मिलना आपने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड कविश एट 10 o'clock। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई मीट कविश एट 10 o'clock। उसका मतलब क्या होगा कि आप एवरी डे या कुछ फिक्स इंटरवल में आप कविश को मिल रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता। ओके, सो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड कविश एट 10 o'clock। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन संडे। अब ऐसा नहीं होगा कि आई गो ऑन हॉलीडे ऑन संडे। इसका क्या मतलब होगा कि आप हर संडे छुट्टी पर जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इस पर्टिकुलर संडे की बात करें कि इस संडे में छुट्टी पर जा रहा हूँ। ओके, या कई वेकेशन पे हम लोग जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे? ओके, नाउ ये जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो स्पीकर पूछ रहा है वो इस पर्टिकुलर संडे की बात कर रहा है। ओके, हर संडे को आप क्या करते हो वो ये नहीं पूछ रहा। अगर हर संडे को आप क्या करते हो ये पूछना है तो आपको क्या पूछा जाएगा? व्हाट डू यू डू ऑन संडेज। ठीक है, तो क्या हर संडे को आप क्या करते हो उसका ये मतलब है। लेकिन जब आपको ये पूछना है कि इस पर्टिकुलर संडे को आप क्या कर रहे हो तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। ओके, सो we don't use the present simple if we have made a personal or temporary arrangement. I hope you are clear. फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली प्रैक्टिस के करते करते ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। ओके, जब आप बहुत सारे रूल्स एक साथ लर्न करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी होगा। ओके, चलिए और कुछ देखते हैं। समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कैसे? देखिए एग्जांपल्स। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू का मतलब एग्जैक्टली आप क्या करते हैं। व्हाट्स योर जॉब? ओके, पॉसिबल आंसर्स। आई एम अ डॉक्टर और आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ओके, तो क्या होगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और या फिर मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ओके, और व्हाट आर यू डूइंग? सो व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं, मीन्स आपका प्रोफेशन क्या है, जॉब क्या है। और व्हाट आर यू डूइंग का मतलब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं डॉक्टर हूँ। ओके, मे बी आप डॉक्टर है तो इस वक्त आप ऑपरेशन कर रहे हैं या पेशेंट्स को देख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप हैं क्या और आप कर क्या रहे हैं। ओके, सो व्हाट डू यू डू दैट मीन्स व्हाट इज योर जॉब, और व्हाट आर यू डूइंग दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट। Okay, or particularly we can say what are you doing these days. Okay, suppose you are a teacher. Okay, so what you can say, I'm a teacher, I teach English to students, and these days I'm teaching fourth grade students. Okay, so that's the difference between simple present and present continuous. Okay, now next is, okay, example पूरा कर लेते हैं. So what do you do? What's your job? I'm a doctor, or I work in a hospital. So what are you doing? That means what are you doing at this moment, or what are you doing these days? तो क्या possible answers होंगे? Maybe I'm doing my homework, or I'm studying my science book, or I'm reading a comic, or I'm in operation theater, I'm talking to patient and whatever. Okay, we take one more example. How do you go to school? आप हर रोज या जब भी आप स्कूल जाते हैं तब कैसे जाते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल आंसर क्या होगा कि जो पॉसिबल आंसर है वो क्या होंगे कि मैं जनरली बस से जाता हूँ। लगभग
रोज बस से ही जाता हूँ या फिर चल के जाता हूँ, ऐसा कुछ। सो आई यूजुअली गो बाय बस और आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, इस वक्त आप, या आज की बात अपन करें तो आप अभी स्कूल कैसे जा रहे हैं, तो उसके आंसर्स क्या होंगे, आई एम गोइंग बाय बस टुडे और आई एम वॉकिंग टुडे। ओके, सो एक चीज हुई कि आप रेगुलरली कैसे जाते हैं और एक चीज हुई आप इस वक्त कैसे जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। ओके, रेगुलरली सपोज आप बस से जाते हैं, मे बी ट्रेन से जाते हैं, या बाय टैक्सी जाते हैं, बाय ऑटो जाते हैं, ठीक है, तो यू कैन से आई यूजुअली गो बाय बस, आई जनरली गो बाय टैक्सी, वट एवर। ओके, लेकिन इस वक्त आप कैसे जा रहे हैं, तो आप आपका वो फिक्स हो गया कि जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल आप ले रहे हैं वो फिक्स है कि मैं आई एम गोइंग बाय टैक्सी। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप रोज क्या करते हैं और आप आज क्या कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं। ओके, okay friends, let's discuss some questions. Here, the first question, please be quiet. There are four options, am working, have worked, was working, worked. Okay, इसमें क्या हो रहा है, मैं अभी आपको बोल रही हूँ चुप रहने के लिए, इसका मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं हमेशा आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप चुप रहिए। ओके, तो क्या क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, आई एम वर्किंग। प्लीज चुप रही है, मैं काम कर रही हूँ, सो प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। Okay, next question. Look at Arju. She her new hat. Okay. जब भी कपड़े पहनने की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि कपड़े रेगुलरली उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पहने ही हुए होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, शी इज वेयरिंग हर न्यू हैट। ओके, हमेशा वो जो भी पहनती है, मे बी पुरानी पहनती है, नई पहनती है, कुछ भी है, लेकिन इस वक्त उसने जो पहनी हुई है मतलब ये कंटिन्यूअस है। ओके, तो शी इज वेयरिंग हर न्यू हैट। ओके, then the weather is nice at the moment, it's not raining. अभी मौसम बहुत अच्छा है, अभी बारिश नहीं हो रही है। हम इस पल की बात कर रहे हैं तो अभी बारिश नहीं हो रही है। ओके, वेयर आर द चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ओके, ना क्या पूछा है, इस वक्त बच्चे कहाँ हैं, तो इस वक्त बच्चे कहाँ पर है, पार्क में हैं, सो दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ओके, हमेशा बच्चे कहाँ रहते हैं ऐसा नहीं पूछा गया है, इस वक्त बच्चे कहाँ हैं ये पूछा गया है, तो दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ऑन द फोन, कैन यू फोन अगेन लेटर। ओके, वी आर टेकिंग डिनर ना, हम इस वक्त खाना खा रहे हैं, क्या आप बाद में फोन कर सकते हैं। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप खाना खा रहे होते, पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप खाना खा रहे हैं, इसलिए आप सामने वाले आदमी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बाद में फोन कीजिए। ओके, सो वी आर टेकिंग डिनर नाउ, कैन यू प्लीज फोन अगेन लेटर। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आई एम नॉट वॉचिंग इट। ओके, आप इस वक्त प्लीज टेलीविजन बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं देख रहे हैं, यू डोंट वॉच टेलीविजन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज ऑफ नाउ यू आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, आप हमेशा टीवी नहीं देखते हैं, ये एक अलग केस है, और आप इस वक्त टीवी नहीं देख रहे हैं, ये एक अलग केस है। ओके, आप हमेशा टीवी नहीं देखते, दैट मीन्स दैट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आप इस वक्त टीवी नहीं देख रहे मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आप टीवी बंद कर दीजिए, मैं इस वक्त टीवी नहीं देख रहा हूं। ओके, ओके, शी इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, दैट्स प्रिटी सिंपल, वी हैव टू राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो वो एक एप्पल खा रही हैं, ऐसा कहा है। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हमें बात करना है यहाँ पे, ही इज वेटिंग फॉर अ बस, वो इस वक्त एक बस का इंतजार कर रहा है। ओके, मे बी ही हैज टू गो टू हिज ऑफिस और मे बी स्कूल और समवेयर, सो ही इज वेटिंग फॉर अ बस, इस वक्त वो बस का इंतजार कर रहा है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, यस आई एम फाइन थैंक यू। तो अगर ये आंसर मिलता है कि मैं अच्छी हूँ धन्यवाद, तो क्या क्वेश्चन होगा,
आप कहाँ जा रहे हैं इसका आंसर ये नहीं हो सकता। आर यू हंग्री इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आप भूखे हैं उसका आंसर मैं अच्छा हूं नहीं हो सकता। आर यू फीलिंग ओके आपको ठीक लग रहा है उसका आंसर ये हो सकता है। ओके तो क्या करेक्ट होगा? आर यू फीलिंग ओके? यस आई एम फाइन थैंक यू। आपको ठीक लग रहा है? यस आई एम फाइन थैंक यू। देन again we have to फाइंड द क्वेश्चन। यस टेक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपको कब लेके जानी होती है? जब बारिश होती है। ओके सो क्या क्वेश्चन होगा? इज इट रेनिंग? ओके एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। सो इज इट रेनिंग? यस टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है क्या? हाँ हो रही है, छाता लेके जाना। ओके हमेशा बारिश नहीं होती इससे डज इट रेन नहीं आएगा। इस वक्त की हम बात करें, इस वक्त बारिश हो रही है क्या, तो इज इट रेनिंग आएगा। ओके अगेन इट्स नॉट कोल्ड। अभी ठंडा नहीं है या सर्दी नहीं है। तो व्हाट आर यू डूइंग का आंसर ये नहीं हो सकता। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो उसका आंसर इस वक्त सर्दी है ऐसा नहीं हो सकता। वेर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, ये उसका आंसर इस वक्त सर्दी है ऐसा नहीं हो सकता। हाउ आर यू डूइंग आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका आंसर ये नहीं हो सकता। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट आपने कोट क्यों पहना हुआ है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि इस वक्त सर्दी नहीं है फिर भी आपने कोट क्यों पहना हुआ है। ओके ओके दिस वन। आई डैश एवरी डे फ्रॉम 9 o'clock to 5:30। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रोज की बात हो रही है। अगर रोज की बात हो रही है इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके दैट मीन्स आई वर्क एवरी डे फ्रॉम 9 o'clock to 5:30। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और आप रोज क्या करते हैं 9 से 5:30, वो एक अलग केस है। ओके सो आई वर्क एवरी डे फ्रॉम 9 o'clock to 5:30। मैं रोज 9 बजे से 5:30 बजे तक काम करता हूँ, मे बी ऑफिस में या कहीं पर भी कहीं पर भी। ओके तो जब रोज की बात आती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जब इस पर्टिकुलर मोमेंट की बात आती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके ओके यहाँ पर आई टेक अ शॉवर एवरी मॉर्निंग। ओके मैं रोज सुबह में नहाता हूँ या शावर लेता हूँ। और इस वक्त अगर लेना है तो व्हाट्स आई एम टेकिंग शावर। ओके सो आई एम टेकिंग शावर तो वो इस वक्त की बात होगी, एंड आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग तो वो हर रोज की बात होगी। ठीक है तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? नाउ इट डैश अ लॉट इन विंटर। अभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हर सर्दियों में यहाँ पे बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। इसका मतलब हम हमेशा की बात कर रहे हैं, हर सर्दी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके सो इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। okay now it is raining a lot in winter, that is a meaningless sentence because सर्दियों में बहुत बारिश हो रही है, तो ये तो गलत है, मीनिंगलेस है ना। सो इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। हर सर्दियों में यहाँ पर बहुत बारिश होती है, हर सर्दी में यहाँ पर बारिश होती है। ओके सो आप यू मस्ट बी गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक चीज हमेशा के लिए सच है या लंबे टाइम के लिए सच है, और एक चीज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए सच है या टेम्परेरी सच है। ओके हियर ऑफन अगेन वर्ड ऑफन इज यूज्ड ओवर हियर। तो क्या हो रहा है, मैं बहुत लगभग बहुत बार टेलीविजन देखता हूँ, बहुत बार टीवी देखता हूँ। ओके तो यहाँ पर देखता हूँ नहीं देखता हूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दैट वी हैव टू चूज। बट रेगुलर की हम बात कर रहे हैं, ऑफन बात कर रहे हैं, ऑफन की बात करें तो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके सो आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ। ओके मैं टीवी नहीं देख रही हूँ इस कंटिन्यूअस टेंस। मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब मेरी आदत में नहीं है या मेरी रूटीन में नहीं है कि बहुत ज्यादा टीवी देखा जाए, तो ये एक हमेशा के लिए सच चीज है कि मैं बहुत टीवी नहीं देखता हूँ। इस वक्त मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके सो इस वक्त मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन। बट आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन, दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ। ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक चीज लंबे टाइम के लिए सच है, एक चीज टेम्परेरी सच है। ओके
चलिए यहाँ पर लेट्स सी disturbed, don't disturb, okay, don't disturb her, she is studying. प्लीज उसको डिस्टर्ब नहीं करिए, वो पढ़ रही है. ओके, D should be capital over here. Don't disturb her, she is studying. ओके, सो उसको डिस्टर्ब नहीं करिए, इस वक्त वो पढ़ रही है. I am tired, I want to go home. मैं थका हुआ हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ. ओके, वेरी सिंपल. डू यू नो दैट गर्ल? येस बट आई डोंट रिमेंबर हर नेम. इस वक्त मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है. ओके, एंड इस केस में कभी भी एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं आता है. मीन्स आपने देखा है उस लड़की को, लेकिन एक काफी लंबे टाइम से आपने उसको देखा है या नहीं देखा है, तो उसके वजह से आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है. ओके, सो आई डोंट रिमेंबर हर नेम. ओके, हियर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन. मुझे नहीं पता आपका क्या मतलब है, ये बात कहने का आपका क्या मतलब है. ओके, इन केस ऑफ अंडरस्टैंड ऑल्सो वी जनरली डू नॉट यूज अंडरस्टैंडिंग. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं नहीं समझा आपका क्या मतलब है. ओके, एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? माफ़ कीजिए, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ओके, सो इसका मतलब एक लंबे टाइम की हम बात करें कि आपको इंग्लिश बोलने आती है कि नहीं. ओके, सो डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, वेयर्स अनु? दैट्स अ क्वेश्चन. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता, इस वक्त मुझे नहीं पता अनु कहाँ पर है. ओके, व्हाट इज फनी इन दिस? इसमें इतने हंसने वाली क्या बात, इसमें इतना फनी क्या है? वाई आर यू लाफिंग? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ओके, दिस वन, व्हाट डज योर सिस्टर डू? आपकी सिस्टर क्या करती हैं? तो उसका आंसर है शी इज़ अ टीचर. अगर शी इज़ अ टीचर आंसर है तो आपकी सिस्टर क्या करती है वही पूछा गया होगा. उसने क्या किया है या वो क्या कर रही है ऐसा नहीं पूछा जाएगा. ओके, आप ये आंसर कब करते कि माय मदर इज़ अ टीचर और माय फादर इज़ अ टीचर, माय सिस्टर टीचर? जब आपको ये पूछा जाए कि आपकी मम्मी पापा या आपकी बहन क्या करते हैं. ओके, सो व्हाट डज योर सिस्टर डू? नाउ सिस्टर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आप डज यूज करेंगे. ओके, सो व्हाट डज योर सिस्टर डू? शी इज अ टीचर. ओके, इट्स ओके, ये अभी की बात हो रही है तो इट्स रेनिंग आउटसाइड. ओके, इट्स रेनिंग, अभी बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जाना चाहता. आई डोंट वांट टू गो आउट इन द रेन. ओके, सो अभी बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता. इट्स रेनिंग, आई डोंट वांट टू गो आउट इन द रेन. ओके, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया है. नो वांट नहीं आएगा, डोंट वांट आएगा. ओके, ओके, हाउ मच टू फोन जयपुर? ओके, तो जयपुर फोन करने का कितना पैसा लगता है? ओके, सो दैट्स अ यू कैन से a truth or a fact you can say. Okay, so how much does it cost to phone जयपुर? ओके, हमेशा के लिए ये चीज़ सच है कि जयपुर को जयपुर फ़ोन करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट लगता है. तो ये हमेशा के लिए सच है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट में भी 10 रुपये है, 5 रुपये, कुछ भी है. ओके, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ़ोन जयपुर? जयपुर फ़ोन करने के लिए कितना पैसा लगता है? ओके, चलिए, आई बट आई डैश वेरी ऑफन. आई लाइक स्विमिंग बट आई डोंट स्विम वेरी ऑफन. ओके, बट आया है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव बात हो रही है. मुझे स्विमिंग पसंद है बट मैं बहुत ज़्यादा स्विमिंग नहीं करता. ओके, सो आई लाइक स्विमिंग बट आई डोंट स्विम वेरी ऑफन. नेक्स्ट इज, दो आई डैश इंग्लिश बट आई डैश टू स्पीक इन इंग्लिश. दो आई नो इंग्लिश बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. वैसे मुझे इंग्लिश आती है बट मैं इंग्लिश में बोलना नहीं चाहता या इंग्लिश में बोलना नहीं चाहती. ओके, सो दो आई नो इंग्लिश बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. बिकॉज यहाँ पे बट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम नेगेटिव बात बोलने वाले. जनरली हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हैं ना. आई लाइक मैं मुझे ये खाना पसंद है
पर इस वक्त मैं ये नहीं खाना चाहता। ओके, सपोज आपको पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे वैसे पिज़्ज़ा पसंद है बट अभी मैं पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहता। ओके, सो ये जो बट है वो दैट इज गिविंग अ नेगेटिव सेंस। ठीक है। ओके, हाउ ऑफन, ऑफन जब भी आता है हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। सो हाउ ऑफन डज ही रीड अ न्यूज़पेपर, ही की बात करें, ही मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो हाउ ऑफन डज ही रीड अ न्यूज़पेपर। ओके, एक्सक्यूज मी बट यू हैव सेट, सिट, आर सिटिंग एंड सेट। ओके, जब भी बैठने की बात होती है, बैठना इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, मतलब आप कहीं पर बैठे, दैट मीन्स सपोज आप एक बेंच पर बैठे, दैट मीन्स यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ओके, आप ऐसा नहीं करें कि परमानेंट बैठे हुए हैं, या फिर ऐसा नहीं कि करें कि बैठ रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सपोज किसी 5 मिनट ड्यूरेशन की हम बात करें तो उस पर पूरी ड्यूरेशन में आप बेंच पर बैठे हैं। ओके, तो बैठने के लिए क्या आता है, सिटिंग, ये हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ओके, सो एक्सक्यूज मी बट यू आर सिटिंग इन माई प्लेस। ओके, मुझे माफ कीजिए बट आप मेरी जगह पर बैठे हुए हैं। ओके, मेरी जगह पर बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब होगा, इस वक्त, इस पूरी ड्यूरेशन में, इस मोमेंट में आप मेरी जगह बैठे हुए हैं। इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी बट यू आर सिटिंग इन माई प्लेस। ओके, okay, I dash cooking but my sister, okay, so again but is giving the negative sense. I like cooking but my sister doesn't. Okay, my sister third person singular, मुझे कुकिंग पसंद है बट मेरी सिस्टर को कुकिंग पसंद नहीं है। सो आई लाइक कुकिंग बट माई सिस्टर डजंट। ओके, देन वॉट टाइम डैश वर्क इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स मतलब आप रोज शाम की बात करें, रोज शाम की बात करें मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो वॉट टाइम, और फिर हम ब्रदर की बात करें, ब्रदर मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, डस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज आएगा। सो वॉट टाइम डज योर ब्रदर फिनिश वर्क इन द इवनिंग, इन द इवनिंग्स, तो रोज शाम को आपके भाई का काम कितने बजे खत्म होता है। ओके, रोज की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और ब्रदर की बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज आएगा। सो व्हाट टाइम डज योर ब्रदर वर्क इन द इवनिंग्स। ओके, देन ओके, अजिता, अजिता मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, अजिता डजंट लाइक, ओके, अजिता डजंट लाइक कॉफी, शी प्रिफर्स टी। जो फर्स्ट पोर्शन है, पार्ट है सेंटेंस का, दैट इज ए नेगेटिव। सो अजिता डजंट लाइक, अजिता थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ में हम डज या डजंट यूज करेंगे। तो अजिता डजंट लाइक कॉफी, शी प्रिफर्स टी। ओके, now let's try this paragraph. We have to fill up the blanks with the simple present or present continuous tense. Okay, so I dash a party tomorrow. अभी कल की बात हम कर रहे हैं, आने वाले कल की, ऑलरेडी पार्टी का प्लान फिक्स्ड है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो, आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो। वी आर ऑल वेरी बिजी एट द मोमेंट, इस वक्त हम लोग सब बहुत बिजी हैं। Mom is cooking a cake, yeah, mom is making a cake, and I am decorating the house. Okay, I love balloons, so I have a lot of them. Okay, मुझे balloons बहुत पसंद है तो मेरे पास बहुत सारे balloons हैं। My brother is giving me, although he likes them very much. मेरा भाई मुझे दे रहा है, वैसे उसको भी balloons बहुत पसंद है। Okay, now every year की बात आ रही है, then we have a party or we give a party every year to celebrate our birthday. Okay, we are twins, हम जुड़वा हैं। वी ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, हमेशा की बात कर रहे हैं इसलिए सिंपल प्रेजेंट, वी ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। माई डैड यूजली, हमेशा की बात कर रहे हैं, हर साल की, यूजली सिंपल प्रेजेंट टेंस, माई डैड यूजली brings a bag with small presents to all the guests. What are you doing right now? Are you coming? Are you giving a party on your birthday? Okay. Now read the entire paragraph once again. I am giving a party tomorrow. We are all very busy at the moment.
My mother is cooking, or my mother is making a cake, and I am decorating the house. I love balloons, so I am having a lot of them, or I have a lot of them. My brother is giving me, although he likes them very much. We give a party every year to celebrate our birthday. We are twins. We always have a great time. My dad usually brings a bag with small presents to all the guests. What are you doing right now? Are you giving a party on your birthday? ओके, सो 2 से 3 बार आप इसको रीड करें, कुछ पैराग्राफ आप खुद से भी बना सकते हैं. Friends, initially you will find it difficult to understand the grammar of simple present tense or sentence framing of simple present tense or present continuous tense. But gradually, with practice, you'll be able to understand the things in good manner, or I can say better manner. Okay, just start reading some of the magazines, some of the English articles, English newspapers, and all that. Okay. और जैसा मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, चाहे आप देख करके बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप बोलिए. जितनी बारी आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. वंस अगेन विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय.